Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Internet Worldwide. Internet is a network of computers that span the whole world. It is a global system of many small networks interconnected with each other through electronic and wireless. Internet users can share a variety of information and communicate with each other across the world. In simple words, the internet is known as a network of networks that are connected via satellite, telephone lines and optical fiber cables. इंटरनेट देखिए आपका नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, ये आपका ग्लोबल सिस्टम है बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स का जो एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक या वायरलेस के थ्रू. सो इंटरनेट यूजर्स जो होते हैं वो जो वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. और अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है जो आपके सैटेलाइट, टेलीफोन लाइंस, ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड होता है. ओके. Infosol, digital technologies can contribute significantly to the fulfillment of every SDG. The internet helps us with facts and figures, information and knowledge for personal, social and economic development. Digital technologies जो हैं वो आपका contribute करती हैं हर SDG के fulfillment में, और जो इंटरनेट हमें हेल्प करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या फिर सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. Okay, advantages of internet. The internet has become an integrated part of our life, and a day without might not be impossible or unimaginable. Read the following advantages of the internet. You can search for anything on the internet. The internet is a handy platform to upload, download and share data. The internet also provides a good source of entertainment. With the internet, you can connect with people all over the world. The internet is also an excellent place to do business, for it helps you reach global users. Online banking is now possible because of the internet. Online shopping has made our lives easier. अच्छा, इंटरनेट के एडवांटेजेस तो देखिए बहुत सारे हैं. आई एम श्योर आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते ही हैं. ओके, एक तो आप कुछ भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, और यहाँ पे देखिए आप डेटा को अपलोड, डाउनलोड, शेयर कर सकते हैं. गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है आपका इंटरनेट, और आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. यहाँ पे बिजनेस आप कर सकते हैं. इंटरनेट मतलब कि एक एक्सेलेंट प्लेस है बिजनेस करने के लिए क्योंकि आपको ये ग्लोबल यूजर्स तक पहुँचने में हेल्प करता है. ऑनलाइन बैंकिंग जो है इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाई है. ऑनलाइन शॉपिंग जो हम सभी करते हैं, आपने देखा होगा सबको करते हुए, सो वो इंटरनेट की हेल्प से ही तुम करते हैं, है ना. Carrying only one small device with an internet connection means having the world full of information in your hand at once. The internet lets a man sit in one place and explore the world. The internet is probably one of the most revolutionizing inventions. अच्छा, आप एक छोटा सा डिवाइस अपने साथ कैरी कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है. मतलब क्या है कि आपके पास आपके हाथ में पूरे इस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है. जब चाहें जो चाहें आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, और आप एक जगह पे बैठे हैं और लेकिन आप बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. ओके, और अब तक का हम कह सकते हैं कि सबसे रेवोल्यूशनाइजिंग जो इन्वेंशन में से एक है वो है आपका इंटरनेट. ओके, यूजेस ऑफ इंटरनेट. द इंटरनेट हैज़ मैनी यूजेस एंड इट हैज़ टच्ड द लाइव्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन. Following are some main uses of the internet. Read them carefully. Email is the most common use of the internet, which helps in communicating across the world. Web portals and websites are the best way to spread awareness and information. The e-banking service through the internet helps to bring the bank at your fingertip. Internet is the ocean of knowledge. Anything you name it, you will find it there. The internet is the best tutor and a medium for spreading education. It is boon for students to learn their academics in an interesting audiovisual medium. From food to shopping, from banks to healthcare, everything is available online. The internet has become very affordable nowadays, which has helped the rural population for their growth. Okay. मेन यूजेस क्या हैं? देखिए, ईमेल जैसे हम किसी को सेंड करते हैं, हम इंटरनेट की हेल्प से भेजते हैं. ओके, इससे हम किसी भी पर्सन के साथ जो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठा है उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, वेब पोर्टल्स, वेबसाइट बहुत अच्छा तरीका है कि अवेयरनेस से इन्फॉर्मेशन को हम स्प्रेड कर सकें. ई बैंकिंग आपकी इंटरनेट के थ्रू होती है, जिससे कि बैंक आपके फिंगर टिप पे आ चुका है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, और आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है ओशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सागर है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पे आप दे सकते हैं और आपको उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी.
एक अच्छे ट्यूटर का भी तो इंटरनेट काम करता है ना। ये स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट तो है ही है कि वो अपने एकेडमिक्स को सीख सकें बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो विजुअल मीडियम से। फूड से लेके शॉपिंग तक, बैंक से लेके हेल्थ केयर तक, हर चीज़ अवेलेबल है आपके ऑनलाइन। और आज के टाइम पे इंटरनेट एक्चुअली काफ़ी अफोर्डेबल भी हो चुका है। ओके, थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग 4 थिंग्स। Number 1, a computer. 2, a modem and a telephone line if you are using dial-up access, a data line of some sort if you are not using dial-up access. 3, an internet browser and software to connect you to the ISP. And 4, an account with an internet service provider, that is ISP. So आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए? सबसे पहले एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है, एक मॉडम और एक टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन अगर आप डायल-अप एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, और एक डेटा लाइन ऑफ सम सॉर्ट अगर आप डायल-अप एक्सेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तीसरा, इंटरनेट ब्राउज़र और सॉफ्टवेयर जो आपके ISP के साथ कनेक्ट कर सके। और चौथा, एक अकाउंट होना चाहिए विद इन ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Infosol, the type of internet service you choose will largely depend on which internet service provider serves your area, along with the types of service they offer. जो टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस हैं जो आप चूज़ करते हैं वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सा ISP आपके एरिया में सर्व कर रहा है और साथ ही साथ वो क्या सर्विस ऑफर करते हैं। ओके, नाउ टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट। वेबसाइट, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल yahoo.com. Every website on the internet has a unique address. This address of a website or web page is called the Uniform Resource Locator, that is URL. वेबसाइट आपका एक कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेजेस का जो साथ में आपके लिंक्ड होते हैं, जैसे कि yahoo.com हो गया। सो एवरी वेबसाइट जो आपकी इंटरनेट पे ना, इनका यूनिक एड्रेस होता है। सो ये जो एड्रेस होता है वेबसाइट का या वेब पेज का, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Number 2 is home page. The home page is the first page of a website. It provides introductory information and links to the other page of the website. जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसे हम कहते हैं होम पेज। ओके, इसमें आपकी इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन होती हैं और लिंक्स होते हैं दूसरे पेजेस के ऑफ वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट इज www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, is the largest information system on the internet. It contains millions of websites that provide information in the form of text, animations, pictures and videos. So www ये आपका सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंटरनेट पे। इसमें मिलियंस ऑफ आपकी वेबसाइट्स हैं जो आपको टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर या वीडियो की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, वेब ब्राउजर. A web browser is application software that is used to access the information on the website. For example, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome and Mozilla Firefox. वेब ब्राउज़र आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ऑन द वेबसाइट, जैसे आपके हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम। ओके, next is a search engine. A search engine is a software program that helps people find the information they are looking for online using keywords or phrases. आप लोग देखिए, लोगों को किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करना है तो वो कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। इसके लिए सर्च इंजन की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है आपका। ओके, search engines are able to return results quickly even with millions of websites online by scanning the internet continuously and indexing every page they find. तो सर्च इंजन जो है ना, बड़ी जल्दी से रिजल्ट आपको देते हैं। जैसे ही आपने किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आपने कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांगी है। ओके, ओपनिंग द वेब ब्राउजर. A web browser takes you anywhere on the internet, letting you see text, images and videos from anywhere in the world. Let's open the web browser. Number 1, click on the start button. 2, click on all apps. 3, scroll through the app list until you reach the web browser. Let's say Google Chrome and click on the icon. The Google Chrome browser will appear on the screen. So web browser आपको open करना है, सबसे पहले start button पे click करेंगे, फिर all apps पे click करेंगे। Okay, फिर हम चलिए कोई web browser को search करते हैं, let's say Google Chrome, और Google Chrome पे इसके icon पे click करेंगे। अब देखिए आपका Google Chrome browser open हो गया है, right? Searching for a website through a web browser. There are many different search engines you can use, but some of the most popular include Google, Yahoo and Bing. To perform a search, you will need to navigate to a search engine in a web browser. So देखिए, वैसे बहुत सारे search engines हैं आपके जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, बट वैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका गूगल ही है। गूगल है, याहू है। ओके, सो लेट्स सर्च फॉर अ वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ द वेब ब्राउजर. Number 1, type one or more keywords also known as search terms. 2, press enter on your keyboard. In this example, we will search for story books.
3. After you run a search, you will see a list of relevant websites that match your search terms. These are commonly known as search results. 4. If you see a site that looks interesting, you can click a link to open it. If the site doesn't have what you need, you can simply return to the result page to look for more options. Okay. So आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक या दो कीवर्ड्स आप टाइप करेंगे, जैसे हम सर्च टर्म्स ही कहते हैं, लाइक आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर आपने एंटर पे प्रेस करेंगे. ओके, सो हियर वी आर सर्चिंग फॉर स्टोरी बुक्स. अब देखिए आपकी लिस्ट आ गई आपके पास रेलेवेंट वेबसाइट्स की, इन्हें सर्च रिजल्ट्स कहा जाता है. तो अगर आपको कोई भी साइट इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं. ओके, और अगर किसी भी साइट में वो चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए था, तो आप फिर से वापस क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पेज पे आएंगे, फिर आप और ऑप्शंस को देख सकते हैं. ओके, रीबूट. यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग ऑन द इंटरनेट. ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ मेड आवर लाइव्स ईजियर. Email is the most common use of the internet, which helps in communicating across the world. A website is a collection of related web pages that are linked together. There are many different search engines you can use, but some of the most popular include Google, Yahoo, and Bing. So here comes the end of this chapter, and exercise की practice बच्चों आप खुद से करेंगे. Okay?